Class, and today we are here to convey our next topic, which is related to chapter 1. And in previous video we have discussed the chapter the sentence, and we have learned about the types of the sentence and what is a sentence. So just have a revise. We have read in previous video declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences. क्योंकि किसी भी न्यू टॉपिक को समझाने के लिए उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होता है, सो दैट जब हमारी नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हमारे प्रीवियस नॉलेज से लिंक करके हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड the next topic very well if we are having the knowledge about the sentence. So our topic is the sentence, and this chapter is 1, and this is the second part of this chapter, the sentence. So थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं. and what to do, ये हमारे थे sentences. Okay, so just revise. What is a sentence? A sentence is a group of words which has a complete sense or a complete meaning. Sentence की condition क्या है कि उसका complete sense और complete meaning होना चाहिए. A sentence always start with a capital letter and always ends with a full stop, question mark, exclamation sign. This is necessary for those sentences which are the kind of interrogative, exclamatory, declarative and so on. So the most important topic is we are knowing very well what is a sentence. क्या conditions मैंने आपको बताई हैं? Sentence group of words. Class, sentence is a group of words. Okay, just revise for 2 or 3 minutes. Next, always starts with a capital letter and ends with a full stop. This is a sign of full stop, question mark, sign of exclamation. So through these examples you can easily revise or you can easily understand what is a proper sentence. A sentence is a group of words which has a complete sense or complete meanings. It always starts with a capital letter and it always ends with a full stop and question mark and exclamation. It depends on the kinds of the sentence. When you write declarative sentence, when you declare something, when you write in a declaration form, when you write in a statement form, then you put a mark of full stop. When you ask a question, when you interrogate someone in written form, then you put the mark of question mark. Then again, when you are surprised, when you are surprised and you are describing your sudden emotions, sudden feeling of your heart, okay, in written form, then you put the mark of exclamation. Have you knew this very well? These are the punctuation marks. Okay, full stop, question mark and exclamation sign. So this is a short description about the sentence. So let's start its another important point. And what is that? So class, first of all open book page number 7. So we can easily understand this topic
very well. So sentence. Okay. It has two parts. It has two parts. And what are those parts? Yes. First is subject. First is subject. And second one is predicate. In this part, we have discussed what is a sentence, and previous video we have discussed, we have learned the kinds of sentences, and in this video we are discussing, we are trying to understand, we are describing sentence and its parts. Now I will take one proper sentence with proper meaning, like example. Example is the boy, है ना, the boy ate the apple, ate the apple. Second sentence, second example is I need help with this big problem. So, describe it perfectly. I have taken two examples, which are the boy ate the apple and second one is I need help with this big problem. So, what we are discussing about? We are discussing about in this video subject and predicate. So, the first question is, what is a subject? A subject. Subject क्या होता है? Subject क्या होता है class? In previous class you have learned, but in this video we are discussing, so we will revise it. Okay. So subject is the part of a sentence that tells. Subject is a part of a sentence that tells who or what the sentence is about. I am repeating again. The subject is the part of a sentence who or what the sentence is about. जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. So here the boy. The boy is noun, ate is verb, the apple is object. But we are discussing about, यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं? We are discussing just about the subject. ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है द बॉय. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें से द बॉय को इरेज करेंगे. Now what is left? Ate the apple. Do you know the meaning? Ate the apple यानी एप्पल खाया. बट who? किसने? So subject is missing over here. You have to mention a person name to complete this sentence, and that part will be subject for this sentence. So I have written the boy. The boy लिख सकते हैं, the girl लिख सकते हैं. The boy. Now the sentence is completed.
द बॉय एट द एप्पल, यानी बॉय ने एप्पल खा लिया, है ना। अभी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा था, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट पार्ट, जो कि सेंटेंस में जो सेंटेंस में मेन होता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, विच कंप्लीट्स अ सेंटेंस। एट द एप्पल, अब बॉय अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे एट द एप्पल, सो यहाँ कोई सेंस नहीं है कि एप्पल को किसने एट किया, है ना। या आप यहाँ केक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसने एप्पल को एट किया है, खाया है ना, या लिया है। तो सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, आई नीड हेल्प विद दिस बिग प्रॉब्लम, है, आई नीड हेल्प विद दिस बिग प्रॉब्लम। सो इसको समझते हैं आप। I will rub I. Now it looks like need help with this big problem. इस big problem में हेल्प की नीड है, किसे, मुझे, आपको, राम को, उसको, हमें, या किसको, ठीक है। सो सब्जेक्ट इज मिसिंग। भाई नीड की हेल्प होगी तो किसी को तो होगी, कोई तो अपने लिए हेल्प मांग रहा होगा। तो जब कोई ना कोई अपने लिए हेल्प मांग रहा है तो उसका नेम यहाँ मेंशन होना चाहिए। अब चाहे वो नाउन फॉर्म में हो, नेम फॉर्म में हो, या प्रोनाउन फॉर्म में हो, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या किया, आई नीड हेल्प विद दिस बिग प्रॉब्लम, यानी मुझे, है ना। आई मीन्स मैं, मुझे किसकी हेल्प है, नीड की, बिग प्रॉब्लम में। आई एम इन बिग प्रॉब्लम सो आई नीड अ हेल्प, ठीक है। सो सब्जेक्ट क्या हुआ इसका, आई। देखिए जब हम यहाँ से द बॉय और आई रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट में एक मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पार्ट मिसिंग हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है। कि सब्जेक्ट क्या है ना, सब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटेंस है, और सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का पार्ट है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का पार्ट है, जो कि ये बता रहा है कि हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस ये है किसके बारे में, ठीक है, ये सेंटेंस किसके बारे में है। अब ऐसे ही सेकंड में था, नीड हेल्प विद दिस बिग प्रॉब्लम, मुझे इस बिग प्रॉब्लम में नीड है, किसको नीड है, आई को नीड है ना। अब यहाँ आई आपने रब कर दिया या आई आपने रिमूव कर दिया, तो आप अपने माइंड में उसके प्लेस पर कोई तो वर्ड ऐड करेंगे, और जो वर्ड ऐड करेंगे तभी सेंटेंस आई से या सब्जेक्ट से रिलेट करेगा। देन ये आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और इसका क्या निकल आएगा, कंप्लीट सेंस, है ना। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में। देन इसका सेकंड पॉइंट जो है उसमें हम आपके बारे में हम बता रहे हैं प्रेडिकेट, ठीक है। हैव यू रेड प्रेडिकेट? प्रेडिकेट को भी हम इन्हीं सेंटेंस के हेल्प से इजीली सीखेंगे, है ना। तो प्रेडिकेट क्या है, अगर किसी सेंटेंस में इफ़ अ सेंटेंस हैविंग ओनली अ सब्जेक्ट, तो दैट sentence is not a complete sentence. If a sentence is having only predicate, that sentence is not a complete sentence. So a sentence requires subject and predicate। अब predicate को समझिए, what is predicate? The predicate is the part of a sentence that asserts meaning. The predicate of the part of the sentence that
asserts something about the subject। ये पोर्शन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, एंड ये मिस हो रहा है तो इसका कोई सेंस नहीं है ना। तो इट कंप्लीट्स द सेंटेंस एंड प्रेडिकेट ऑल्सो कंप्लीट्स द सेंटेंस, ठीक। तो प्रेडिकेट में हम क्या देखने हैं, प्रेडिकेट जो पार्ट होता है सेंटेंस का, हम उसमें ये समझते हैं कि ये एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, ये करता है सब्जेक्ट का एक्शन एक्सप्रेस करता है। ये पार्ट एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कर्ता, और ये आपका हो गया विधेय, बट इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे इजीली। सो इस पार्ट से ये है ना सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, एंड प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है। सो द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट asserts समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। किसी भी तरीके का एक्शन हो, कोई भी फॉर्म हो, वो हम प्रेडिकेट में देख सकते हैं। सो इसका प्रेडिकेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। डाउट्स आ रहे होंगे माइंड में, आई अंडरस्टैंड, कुछ कन्फ्यूजन्स भी होंगी बट क्लियर होंगी। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। In a very easy way we can say subject is who is performing in the sentence, okay, and predicate part which subject asserts, जो subject कर रहा है, ठीक। तो ये तो गया हमारा subject and predicate। देन अब हमें इजी, और हम इसको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, we can understand easily by doing its exercise। So I am going to write some sentences, so it will help us to understand it better। तो हम करेंगे अब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना। अभी तो हमने टॉपिक को अच्छे से समझा है, ओके। नेक्स्ट there are two examples. Now I am going to write 3. My favorite month is March। सो ये जो एप्लीकेशन है ना क्लास, वी विल सर्च हियर आवर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब आंसर्स करेक्ट आएंगे इट मीन्स आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। 4 both my parents have to work at the weekend। So first of all we will practice of both the sentences। So फेवरेट मंथ इज मार्च। मैंने अभी इसको सर्कल नहीं किया है,
ठीक है, इसका भी एक रीज़न है। एंड इन सेम पहले आप इसको पढ़िए। माई फेवरेट मंथ इज मार्च, ओके। एंड सेकेंड आई हैव रिटन बोथ माई पेरेंट्स हैव टू वर्क एट द वीकेंड। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। वी विल राइट द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट पार्ट इन बोथ द सेंटेंसेस। इफ आई विल, यू जस्ट थिंक कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन है। फेवरेट मंथ इज मार्च, फेवरेट मंथ क्या है? मार्च है। किसका है? आपका है, योर्स, मेरा है, उसका है। सो दो जो यहाँ डिक्लेयर कर रहा है माई, तो ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट माई। मैं बता रही हूँ कि मेरा फेवरेट मंथ मार्च है। हैव टू वर्क एट द वीकेंड, वीकेंड पे वर्क करना है, किसी को तो करना होगा ना क्लास। जैसे हम जाएं, वी हैव टू गो टू द मार्केट, वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। तो अरेंजमेंट्स करने के लिए कौन है? हम हैं, वी, है ना। वी हैव गो टू द मार्केट, मार्केट किससे जाना है? हमें जाना है। सेम विद देयर बोथ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को क्या करना है? वीकेंड पर वर्क करना है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? कौन कर रहा है कर्म? वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर? बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, बोथ माई पेरेंट्स। इज देयर डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब आपको प्रीडिकेट अच्छे से समझ में आएगा। ले लेते हैं यहाँ 5। क्या लिख सकते हैं? आ रहे हैं माइंड में आइडियाज, सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। जस्ट ट्राई है, जस्ट ट्राई एंड थिंक, ट्राई एंड थिंक, ट्राई एंड थिंक। लास्ट में क्या होगा कि आप खुद करने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, sitting of the roof of my house was a huge bird, was a sitting on the roof of my house was a huge bird. Sitting on the roof, roof means छत, बैठा है हाउस पर। कौन बैठा था? किसने देखा, है ना। तो यहाँ से क्या गायब है? यहाँ से सब्जेक्ट मिसिंग है। सो दिस इज योर predicate. As I have written here the boy, here I have written I, here I have written my, here I have written both my parents, but this sentence starts with a verb sitting. Sitting is a verb, है ना। verb तो पढ़े हैं आपने। sitting is a verb, ये आपका verb से start हुआ है, तो subject is missing, तो this part is called predicate. Now take a short description. We have learned sentences, we have learned subject predicate, and we have practiced of these examples. We have applied through the examples. So the description is not very lengthy, but the most important thing, you will open your book, then revise once again the subject and predicate, then you will apply it. There is a exercise given on page number 7, and you just practice. There are 10 sentences, 1 to 10. Then you have to differentiate subject or predicate and identify the subject and predicate and write. If whether it is a subject, you just write subject. If there is no subject, you just read the sentence very carefully, and if predicate is given, you just mark it as predicate. So class, बहुत ध्यान से आप ये एक्सरसाइज करेंगे
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाएंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा उसके लिए आप भी प्रिपेयर रहिए एंड दिस सेशन इज़ ओवर नाउ। थैंक यू क्लास।